Please start, ma'am. Okay. Good evening, everybody. And yesterday we have discussed about the health and some health indicators, and basically the health of the female, male, age, age for the marriage, and so that we can avoid some complications for the infant also, for the childbirth also, and the female too, and some of the infections. So today we'll carry on in this line only the agents of the contamination. Agents of the contamination means there is some kind of an infection, and which would be contaminated. The infection should is because of the contamination of some particular kind of the agents. Because these days everybody is aware of the COVID, and one person is contaminated by the other person, and the infection gets on and on and on. Okay, so that the large number of the population gets infected because one person is contaminated and it comes in close contact with the other person, so the other person gets contaminated and the disease becomes, so that the infection in so that the infection from very comes from one person and it goes to the other person, and the other person also gets contaminated with the other person, and the population gets contaminated. And the introduction part is in the introduction part of the infection. Infection is a state when the microorganisms succeed in entering a host and reproduce more of that kind of. It means the virus itself is a non-living. Virus and bacteria, they are the infectious agents. We will study about in the further chapter that there are so many causative agents, but collectively main we know as the viruses and the bacteria. More commonly, they are the causative agents of the infection. So, but on at their own, they cannot infect the person, because they are, if living in the environment, they are actually the non-living, not the non-living. We should say that they are the non-active, but they need one host to reproduce. When they come in contact with some living host, either the animal, either any organism, or the human beings, they come in contact and they enter into the living organism. Okay, living organism, then they start multiplying. Okay, and then from one type of a bacteria, or one bacteria number in bacteria, or the one virus, they start multiplying. ठीक है, जब नंबर एक बहुत ज्यादा हो जाता है किसी का भी, वायरस और बैक्टीरिया का, जिसको हम लोड कहते हैं, वायरस लोड, या जैसे आजकल आप सुन रहे होंगे कोविड वायरस का जो लोड है, ठीक है ना, वायरस लोड है, जो लोड का मतलब है कि बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन हो गई है, अंदर आके वायरस खुद ही मल्टीप्लाई कर रहा है, because that virus has started living on the machinery of the living host जिसमें वो एंटर कर गया। ठीक है, वो चाहे कोई भी एनिमल हो, कोई भी बर्ड हो, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड वी आर मच मोर कंसर्न विद द ह्यूमन बींग्स। अब जैसे क्या था, इनका हॉस्ट था, कोविड का जो वायरस था उसका हॉस्ट था बैट का। बैट के कंटैक्ट में अगर ह्यूमन आता है, चाहे वो उसको ईट किया उन्होंने चाइनीज में, वट एवर, जहां से भी हुआ, तो एक पर्सन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, फिर ऐसे ऐसे करते 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 अब लार्ज पॉपुलेशन एंड होल ऑफ द कंट्री, होल ऑफ द वर्ल्ड इज सफरिंग। ठीक है, बिकॉज उसको एक हॉस्ट चाहिए। ठीक है, जब वो क्योर हो जाता है, ठीक है, एनी पर्सन व्हेन इट गेट्स क्योर्ड, देन उसमें से वो वायरस का लोड खत्म हो जाता है, दैट पर्सन इज नाउ ओके। फिर वो किसी के कंटेक्ट में आता है, देन देयर इज नो चांस ऑफ द इन्फेक्शन, बिकॉज द वायरस लोड इज नॉट देयर एंड द वायरस इज नॉट देयर। लोड तो छोड़िए, वायरस इज नॉट देयर। सो डिजीजेस जो है, दैट इज आउटवर्ड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है उसकी, इन्फेक्शन की। वायरस एंटर करता है, हॉस्ट में एंटर करता है, कोई भी वायरस लीजिए, देयर आर मेनी नंबर ऑफ वायरसेस, number of bacteria, number of different agents which cause the infection. And when it enters into the host, any animal, living host, outside they are behaving as a non-living. So they are not multiplying. ठीक है, वो एक, जैसे अब कोविड का भी एग्जांपल बार बार आई टेकन, अगर किसी सरफेस के ऊपर, अगर किसी पॉजिटिव आई मीन कंटेजियस किसी को पर्सन को हुआ था, उसने किसी सरफेस को टच कर दिया, तो वायरस रिमेन देयर। ठीक है, वो वायरस वहीं रहेगा, बट उस पर वो नहीं रहेगा। और जैसे कोविड का तो अब आ गया है कि 8-10 घंटे तक कुछ सर्वाइव करता है, कपड़ों पे इतने घंटे तक सर्वाइव करता है, मैक्सिमम सर्वाइवल इसका नॉन लिविंग पे 12 आवर्स है। ठीक है, बट क्या होगा कि अगर
उस टाइम में उस टाइम में जब तक वो सर्वाइव कर रहा है, इट कम्स इन कंटैक्ट विद दी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक आपके किसी भी ह्यूमन के टच पे अगर आपने क्लीन नहीं किया हाथों पे बाहर, वो इतना दिक्कत नहीं करेगा, बट व्हेन यू ईट अपनी जो ओपनिंग्स हैं, जैसे आई है, ईयर है, आई, नोज, ईयर, माउथ, ठीक है, यहाँ ओपनिंग से आप किसी को उसको टच करेंगे, दैट उसको फिर क्या होएगा, वायरस को, दैट विल गेट द वे टू एंटर इनटू द इनसाइड ऑफ द हॉस्ट, लिविंग हॉस्ट, ठीक है, और ह्यूमंस। देन वो जब अंदर चला गया, उसको मशीनरी मिल गई, हॉस्ट को लिविंग ऑर्गेनिज्म की मशीनरी मिल गई, एंड देन इट स्टार्ट्स by using that living host machinery, that starts replication, and the number of the virus will go on increasing by multiplication. The number will go on increasing, and then uh, जो वायरस लोड है या बैक्टीरिया लोड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और एक ऐसी पीक पे आ जाएगा, मतलब नंबर लोड के ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर लोड कम है तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी विल fight with that virus. But virus or bacteria or any causative agent of the any disease, like, ठीक है, और अगर अगर हमारा वो वर्कलोड जो वायरल लोड है, वो किसी भी हॉस्ट में उस हॉस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म को ओवरकम कर जाए, लाइक उसकी जो बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी है, डिफेंस मैकेनिज्म है, जब तक तो वो कंट्रोल कर रहा है ह्यूमंस का उस वायरल लोड को, देन इट्स फाइन, तभी तो काफी लोग ठीक हो जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, सिम्टम्स बहुत हाई नहीं जाते, बिकॉज उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज सेइंग दैट इम्यून बूस्टर्स फूड खाइए, इम्यूनिटी बूस्टर्स लीजिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, इम्यूनिटी मीन्स द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, अगर वायरल लोड, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी भी वीक है, ठीक है, और वायरल लोड बढ़ गया है, या फिर इम्यूनिटी वीक नहीं भी थी, वायरल लोड वैसे ही बढ़ गया, मतलब आपकी एक कैपेसिटी है जो इम्यूनिटी उसको ओवरकम कर गया, वायरल लोड या बैक्टीरियल लोड और एनी पॉजिटिव एजेंट का जो लोड है या नंबर ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस जो है वो ओवरकम कर गए, दैट मीन्स की फाइटिंग कैपेसिटी, देन द इन्फेक्शन विल अकर, ठीक है, तब तो बीमारी की कंडीशन में और डिजीज कंडीशन में कोई भी एक पेशेंट, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग और एनी लिविंग बीइंग आ जाता है, फिर दैट वो फिर मैनिफेस्टेशन होती है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वहां से शुरू हो जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि द पर्सन स्टार्ट शोइंग द सिम्टम्स, लाइक कोविड के खांसी है, ब्रेथलेसनेस है, वट एवर द सिम्टम्स, हाई फीवर है, वो फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है, जब तक ओवरकम नहीं करता हमारी वो वायरल लोड, हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म, वो तब तक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नहीं होती हैं ऑफ एनी डिजीज और एनी इन्फेक्शन, ठीक है। सो जो विक्टिम है इन्फेक्शन का, वो डिजीज समटाइम्स ना क्वाइट फ्रीक्वेंटली होती है, कई बार बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होती है। अब जैसे कोई वीक हो गए हैं, उनको दोबारा भी इन्फेक्शन होता है। अब जैसे आप देखिए वायरल फीवर है, जब घर में होता है एवरी सीजन, सीजनल फीवर होता है, जब भी होगा वो सबको होके जाएगा, जिसकी इम्यूनिटी गुड होएगी उसको नहीं होगा, अंदर होगा भी तो उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नहीं निकल के आ पाती हैं, ठीक है। देन सम इन्फेक्शन, द डिजीजेस व्हिच अकर टू अस विदाउट ऑब्वियस फॉल्ट ऑफ अदर्स, क्या कई बार क्या होता है कि हमारी कोई फॉल्ट भी नहीं होती है, उसके बगैर ही वो हमारी डिजीज हमें हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कंटेजियस हैं, हम लोग केयर नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कई लोग हैं नहीं भी उनको पता है, कोई सरफेस टच कर रहे हैं, देन ऑल्सो दे आर गेटिंग कंटामिनेटेड विद द कोविड, एंड दे फिर अब कोविड का क्या है कि उसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आने में ना 14 डेज का टाइम लगता है, मतलब क्लिनिकली आपको सिम्टम्स जो नजर आने शुरू होंगे तब तक वो एसिम्टोमेटिक ही रहते हैं। समटाइम्स क्या है कि किसी की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा है कि वो एसिम्टोमेटिक रहता है, एंड एसिम्टोमेटिक में ही वो वायरल लोड खत्म हो जाता है। सो कोविड तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तभी तो इसकी मेडिसिन अभी तक नहीं बन पा रही है, द साइंटिस्ट दे आर वर्किंग ऑन। बट जो ऑलरेडी वायरल डिजीजेज हैं, बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, उसके बीच में हमें, और उसके बीच में उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं, और उसकी हमें इसीलिए उसकी डिजीजेज भी हैं, लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द सिंपल वायरल फीवर, वट एवर हैपन्स इन एवरी ईयर क्या होगा कि वेन एवर वन पर्सन ऑफ द फैमिली गेट्स इन्फेक्टेड विद द वायरल फीवर, एंड देन everybody in the family will get infected because they are living in the close contact of that person, ठीक है, और इन टच है, इन टच में रहते हैं, और जो किसी चीजों को छूता है, वो कहीं टच करता है, देन those things are touched by the other persons of the family, so they also get infected.
बट क्या है कि अब उसकी मेडिसिन हैं, मेडिसिन इफेक्टिव हैं, या एंटीपायरेटिक्स हैं जो मतलब फीवर लोअरिंग मेडिसिन होती हैं, दे आर इफेक्टिव, और उसके सिम्टम्स जाते हैं, हाई फीवर आप लोअर कर देते हो, और अगर आपका थ्रोट इन्फेक्ट होता है, एंड देन यू कैन हैव द हॉट गार्गल्स एंड ऑल अदर थिंग्स, यू कैन ऑप्ट, एंड देन वो ठीक हो जाता है, ठीक है। बट कोविड इज ऑल्सो अ चैलेंज दीज डेज, हैज ऑल्सो बिकम अ चैलेंज दीज डेज, सो दिस इज ऑल्सो वायरल डिजीज विच इज अ कंटेजियस, जिसके सिम्टम्स अभी अभी तक हमें पता चले हैं कि इतना इतना इसको आपको बच के रहना है, इतनी देर तक सर्वाइवल है, अपने हैंड वॉश कीजिए और अपने सर्फेसिस वॉश कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, तो उससे बचे रहेंगे, ठीक है। और सोशल डिस्टेंसिंग है कि पास मत जाओ, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज, जैसे वायरल बैक्टीरिया क्लोज कंटैक्ट में आने से होते हैं वैसे इससे भी होंगे, ठीक है। तो वायरल वर्कलोड बढ़ेगा, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, ठीक है। सो दिस इज द सेम थिंग, अगर आप सोचें, अगर आपको समझ आ रही है तो, ठीक है। अब नाउ विल डिस्कस दैट एजेंट्स ऑफ द कंटामिनेशन क्या है। सिंपल तो बात हमें पता चल गई। सो एजेंट्स जो हैं, जो एक्चुअली एजेंट्स का मतलब क्या है, जो एक्चुअली डिजीज करता है, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, यही एजेंट है। कोविड का वायरस है, वो एजेंट है, ठीक है। सो दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में सारे के सारे आ गए। माइक्रो मतलब बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म जो नजर नहीं आता है, और इट इज विजिबल विद द यूज ऑफ द माइक्रोस्कोप। सो कोविड वायरस, कोई भी एनी वायरस, बैक्टीरिया, जो भी है, ठीक है, इन ये सारों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर दी microorganisms which contaminate the living body or an inanimate substance with their presence either on or in it, या उसके ऊपर या अंदर, ठीक है, लिविंग हॉस्ट के एंटर करके और टच से कंटेमिनेट होके अंदर फिर चला जाता है फर्दर। They belong to either of the following categories: viruses, rickettsiae, bacteria, fungi, protozoa, metazoal parasites, and the ectoparasites. ये सारी कैटेगरीज है। आई मीन देयर आर वायरसेस एंड नंबर ऑफ वायरसेस, मतलब वायरसेस अगर आपने कैटेगरी ले ली, देयर आर सो मेनी वायरसेस of different diseases with the name of the after the name of the disease. I mean different vibrio cholerae, cholera करता है तो vibrio cholerae है, that's also, ठीक है। एंड बैक्टीरियाज के भी हैं एग्जांपल्स, फंजाई हैं, फंजाई डिफरेंट है, एक फंजाई का एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारे हैं जो ऐसे डिजीजेस करते हैं। फंजाई भी क्या है, कंटेमिनेट होती है, एंड देन फर्दर उससे आफ्टर सम टाइम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, दैट इन दैट पर्सन इन विच द पर्सन विल कम इन कंटैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, और वो कंटेमिनेट होके आगे आफ्टर सम टाइम, जो एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है। मेटाजोल पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। सो दीज आर वेरियस, बट आपके बहुत ज्यादा वेराइटी नहीं है। विल रीड अबाउट देम लिटिल बिट, लाइक कौन कौन से डिजीजेस करते हैं, आपको थोड़ा समझना है, बहुत डिटेल में नहीं है हर डिजीज। हमें एजेंट्स ऑफ कंटेमिनेशन पढ़ना है, इस चैप्टर का नाम ही एजेंट्स ऑफ कंटेमिनेशन है। सो यू ट्राई टू लाइक वेराइटी ऑफ द एजेंट्स, और कौन कौन से तरह की डिजीजेस करते हैं, और थोड़ा बहुत उनके बारे में, ठीक है। दे आर ऑल पैरासिटिक इन नेचर बिकॉज दे लिव एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट एंड दैट दे इन्वेड, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, like they cannot survive at their own. If they are living in the outer side of the environment, then they behave like the non-living. So okay, they don't I mean they don't get multiplied, but as and when they enter into the host, living host, they start using the machinery of the living host, then they start multiplying like anything, okay, and then they multiply, and after some multiplication, like the virus load, बैक्टीरिया लोड और फंजाई लोड और प्रोटोजोआ लोड जब एक डिफेंस मैकेनिज्म को होस्ट के ओवरकम कर जाता है, ओनली देन दे स्टार्ट शोइंग दी, ओनली देन द होस्ट स्टार्ट शोइंग दी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। जो जिस होस्ट को हुआ है उसी वही बीमार होगा, ठीक है, वायरस कर देता है उसको ऐसे करके। सो द डिटेक्टेबल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो डिटेक्ट होती हैं, मतलब जब वो सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, दिखने शुरू होते हैं कि बीमार हो गया, उसको फीवर हो गया, ठीक है, ऑफ एनी ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द डिजीज। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वायरस दैट कॉजेज इन्फ्लुएंजा, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द वायरल फीवर, जो कि वायरस है, हर साल फीवर होता है आपको, वो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, ठीक है। एंड आपको मैं बता दूं, आज से 100-200 साल पहले इन्फ्लुएंजा वायरस भी कोविड वायरस की तरह ही आया था, और इसी तरह से डेथ हुई थी, इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल होना शुरू हुई थी, बिकॉज द इन्फ्लुएंजा वायरस वाज आल्सो वेरी डेंजरस एट दैट टाइम। आफ्टर दैट एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं, एंटीबॉडीज के शॉट्स भी लेते हैं, और हमारी बॉडी में ही इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया। इसी तरह से
वी नीड टू फाइट विद द कोविड। एंड इसी तरह से जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और कोई ना कोई वैक्सीनेशन आ जाएगी, और या फिर हमारी बॉडी भी आई थिंक के एंटीबॉडीज डेवलप कर लेगी, इम्यून हो जाएगी, सेल्फ इम्यून हो जाएगी, देन इट वुड बी लाइक एनी अदर डिजीज, एनी अदर वायरल डिजीज होती है, जैसे फीवर होता है, ठीक है। तो ये भी इसी तरह से बनने वाला है। ये तो फॉर थोड़ा सा टाइम है जो चैलेंजिंग है, बिकॉज वी डोंट नो एक्चुअली द नेचर ऑफ दिस डिजीज। एंड अगर पता भी चला है तो वो हर बार एक नया रंग सा दिखा रहा है। एंड एंटीबॉडीज एंड मेडिसिन कोई भी वर्कआउट नहीं हो रही है। जो मेडिसिन हमारी और है, जैसे लाइक मलेरिया में था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन थी, वो वर्कआउट हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। अब जैसे इबुप्रोफेन के भी में नेगेटिव इफेक्ट्स आए, आई मीन द पर्सन हु आर टेकिंग द इबुप्रोफेन, लाइक कभी काफी बार हम ले लेते हैं ना ब्रूफेन पेन किलर से या एंटीबायोटिक की तरह भी हम यूजुअली ले लेते हैं, तो वो इटली में ज्यादा लोग ब्रूफेन लेते हैं, तो फिर इसका उसमें नेगेटिव इफेक्ट आया, इसीलिए वहां पे डेथ्स हुई है। वट एवर द स्टडी केम आउट, यूज टू रीड, सो ऐसी चीजें हुई हैं। तो अभी तक हमें पता नहीं है कि कौन सी मेडिसिन और कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रही है। कुछ मेडिसिन है दे स्टार्ट वर्किंग, बट ये है कि चलो क्योर होके बंदा आ जाता है, ठीक है। एंड what happens that virus that causes the influenza enters the body of the host और replicate करता है, spread करता है इन्फ्लुएंजा को, ठीक है। उसी तरह से जो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिखाया। अब क्या है कि मेजर फैक्टर्स हैं जब आप इंटरेक्ट करते हो विद ईच अदर, तो जो डिसीज ऑफ द इन्फेक्शन टू अकर, सबसे बड़ी बात होती है कि द एजेंट ऑफ द इन्फेक्शन। जब आपके आसपास कोई इन्फेक्शन होना है और उसका एजेंट आपके पास है, आसपास घूम रहा है, ठीक है। दूसरा, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई भी वायरस है बट आपको उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, अब वो मोड आप प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, करेंगे। अब जैसे कोविड के बारे में कह रहे हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, पूरी की पूरी ओपनिंग्स है। अगर आपके हाथ पे कोई कंटेमिनेट होके आ गया, आप इमीडिएटली आके उस हाथों को, आप खाने से पहले आंखों को, नाक को, मुंह को टच करने से पहले आप उनको अच्छे से वॉश करते हैं। अपने क्लोथ जो है, हो सकता है उसके ऊपर भी कंटेमिनेट हुआ, उनको वॉशिंग के लिए डाल देते हैं। एंड यू टेक बाथ एंड क्लीनली योरसेल्फ एंड देन यू रिसाइड ऑन योर बेड एंड ऑल। अगर आप आए, पहले बेड पे लेट जाएं, हाथ वगैरह सब वहां लगा दें, उसके बाद आप हाथ धोने जाएं तो कंटेमिनेशन बेड पे, उसके बाद आप हाथ धो के आगे फिर से बेड पे आए, फिर से कंटेमिनेट हो जाएंगे। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन को अगर आप इनहिबिट कर दें या रोक दें, ठीक है, या बॉर्डर बना दें एक, ठीक है, तो इन्फेक्शन नहीं होता। तीसरा, अगर आप हॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, अब हॉस्ट, एक एजेंट होगा, एक हॉस्ट होगा, और बीच में क्या होगा, एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो एजेंट है उसने हॉस्ट में जाना है, वो किसी तरीके से उसमें एंटर करेगा, ठीक है। एंड देन अगर वो एंटर करने का तरीका या हॉस्ट की क्लीनलीनेस है या कोई बैरियर लगा दे, लाइक अब हम क्या कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, बैरियर है, हैंड वॉश कर रहे हैं, बैरियर है, मास्क पहन रहे हैं, बैरियर है, ठीक है। तो क्लोथ्स हैं जो आके क्लीन कर रहे हैं, वो बैरियर है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, उसके पास ही नहीं जा रहे हैं, बैरियर है। हमारे पास जब तक कोई डिजीज, मतलब कोई मोड ही नहीं आया, कोई डिजीज, कोई मेडिसिन नहीं आ रही है। अब तो हम कोविड का एग्जांपल लेके कर रहे हैं, बट अगर हर एक वायरल हर किसी का यही तरीका होता है फैलने का। एंड एक टाइम होता है इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे 14 डेज के बाद कोविड सिम्टम्स दिखाता है, इसी तरह से हर वायरस का एक होता है, हर बैक्टीरिया का होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आफ्टर appear after some days, or the clinical manifestations start appearing after the some certain period for that particular virus or that particular bacteria, जो शो होता है उस पर्टिकुलर के लिए होता है। कोविड के लिए 14 डेज है, 12 टू 14 डेज जो भी ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों को अवॉइड करेंगे, देन वी वुड बी सेफ, ठीक है। एंड देन वायरस, वायरसेस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल पैथोजेंस। जो वायरसेस हैं ना, ये इतने स्मॉल है, लाइक बाकी सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब वायरस से बड़े, ठीक है, वायरस से सब बड़े हैं, ठीक है। वायरस सबसे छोटा है और ये रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई करता है इनसाइड द लिविंग सेल, एंड दे आर डायरेक्टली मेकिंग यूज ऑफ द मशीनरी ऑफ द हॉट सेल। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये मशीनरी उसी पे करते हैं, ठीक है। लाइक दे कैन बोरो सम एंजाइम्स, उसकी मशीनरी का मतलब होता है उसी का मेटाबॉलिज्म के ऊपर, उसी के एंजाइम मशीनरी, उसी का ही जो फूड सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसी की म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसी को, और फिर क्या करते हैं, उसकी मशीनरी यूज कर देते हैं। अगर एंजाइम को यूज कर रहे हैं तो हॉस्ट के लिए अवेलेबिलिटी नहीं छोड़ते हैं उस एंजाइम की, ठीक है। एंजाइम की या मशीनरी की या लिपिड्स की या मेटाबॉलिज्म, जो भी मेटाबॉलाइट यूज करते हैं उसकी, और फिर उसको, उसकी बॉडी को डिसइंफेक्शन कर देते हैं। जो वहां पे नॉर्मल हो रहा होता है, वहां पे आगे वायरस कुछ ना कुछ बीच में कर रहा होता है और उसकी मशीनरी को डिस्टर्ब कर देता है। एंड देन और अब हम क्या करते हैं, फिर आपको ये पाथवे समझना पड़ता है। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड
that in which with which pathway the virus or the bacteria or any agent of the contamination is working, और वो कहाँ अटैक करता है और वो होस्ट की कौन सी मशीनरी यूज कर रहा है और किस तरह से। तो हमें समझना पड़ता है उस चीज को ताकि हम उस चीज पे रुकें। हमने क्या किया कि कोविड का हमें पता चल गया तो हमने आउटर वाला संभाल लिया, अब इनर वाला अभी तक समझ नहीं आ रहा है सब लोगों को कि वो कहाँ अटैक करता है। थोड़ा बहुत पता है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, और अगर पता चल गया तो उसके लिए मेडिसिन नहीं बन रही कि उसके अगेंस्ट अब ये पता चल गया तो उसके वहां पे कौन सी मेडिसिन या किस चीज से वो रुक रहा है। थोड़ी बहुत जो भी वर्क कर रही है, बट 100% कोई भी वर्क नहीं किया। हाँ, मैं आपको ये बताऊंगी कि थोड़ा सा जो इंडिया में डेथ रेट कम है, ठीक है, और जापान में, ठीक है, जब जापानीज पर्सन एंड इंडिया में रिकवरी रेट एक तो ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, कंटेमिनेट तो हो रहे हैं, रिकवरी रेट ज्यादा है और थोड़ा डेथ रेट कम है, ठीक है। वो इसलिए बिकॉज जो बीसीजी का वैक्सीनेशन है ना, जैसे बर्थ होता है तो सबसे पहले बच्चे को बीसीजी का वैक्सीन जो टीबी के अगेंस्ट लगाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट लगाया जाता है, वो जापानीज जापान में भी इसी तरह से होता है और इंडिया में भी इस तरह से होता है। सो वैक्सीनेशन लगाया ही जाता है। सो बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन, मैं कहीं पढ़ रही थी तो बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है कि बीसीजी का वैक्सीनेशन जो हमारी इंडिया में होता है वो बहुत कंपलसरी है। हर सरकारी हॉस्पिटल में जब भी बच्चा होता है सबसे पहले उसको ये लगा दिया जाता है, क्योंकि ये डिजीज हमारी टीबी जो है बहुत ही एपिडेमिक कभी हो चुकी है और इसकी एपिडेमियोलॉजी और एपिडेमिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और ये भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा फैलती है। अब इसका इलाज है, थोड़ा टाइम लगता है, 8-9 महीने का, लेकिन इसको पहले ही अगर लगा देते हैं तो टीबी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कम क्या, होते ही नहीं है, बिकॉज आप पहले ही एंटीबॉडीज दे देते हो। तो वो जो वैक्सीनेशन है जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सबको इम्यूनाइज्ड किया हुआ है, वो इससे बचा रही है कोविड से, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ चुका है, दैट इज सेविंग इंडियन पॉपुलेशन की इसमें रिकवरी रेट और डेथ रेट बहुत कम है। ठीक है, ठीक है, फैल रहा है, नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, एसिम्टोमेटिक आ रहे हैं, सिम्टोमेटिक भी हो रहे हैं, ठीक है, बट जो थोड़ा सा पॉजिटिव है, लाइक एज कम्पेयर विद अदर कंट्रीज लाइक अमेरिका, इटली, ठीक है, इंग्लैंड, इनमें ये सब बीसीजी वैक्सीनेशन की कोई कंपल्शन नहीं होती है, ठीक है, बिकॉज वहाँ होती नहीं है, दे आर वेरी मच पैरानॉइड अबाउट दैट डर्ट एंड क्लीनलीनेस एंड ऑल, तो वहाँ पे टीबी के चांसेस होते नहीं है। सो वहाँ पे ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है, बट अब अगर कोविड आया तो ये उसके उस पार्ट पे वो नेगेटिव आ गया, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, जैसे वायरसेस, दे मेकिंग देयर ओन हॉस्टल मशीनरी फॉर द रिप्रोडक्शन, एस्केप डिस्ट्रक्शन बाय द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये डिस्ट्रप्ट भी नहीं होते हैं विद द यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाई एन इन्फेक्शन बाय द वायरस इज मच मोर सीरियस देन द इन्फेक्शन बाय एन अदर कैटेगरी ऑफ द माइक्रोबियल एजेंट्स ऑफ द डिजीज। सो दैट्स व्हाई, बिकॉज ये मशीनरी भी यूज करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इनका अपना रिप्रोडक्शन साइकिल है और ये हॉस्ट को हार्म कर देते हैं और काफी देर तक समझ भी नहीं आता, एंटीबायोटिक से भी डेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो तभी इनसे जब कोई डिजीज होती है, एनी काइंड ऑफ न्यू वायरस भी जब आके डिजीज करता है, पहले पुराने को समझते हैं, उसकी डिजीज मेडिसिन आती है, और जब हम कोई नया वायरस आता है उसकी, फिर जैसे कोविड आ गया नया, ठीक है, तो उससे कोई मेडिसिन जब हम उसकी भी समझ नहीं आती है, मतलब क्योंकि वायरस सबसे इतना माइन्यूट है, बाकी अदर अदर कैटेगरीज ऑफ द कंटेमिनेट करते हैं जो एजेंट्स उनसे, एज कम्पेयर विद दोज। सो एंटीबायोटिक भी नहीं चलते हैं इन पे, काम ही नहीं करते हैं। सो फिर इसके लिए, इसीलिए कोई भी इलाज ढूंढना इट बिकम्स रियल चैलेंज, जैसे कोविड अब पूरे वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन वायरसेस, ठीक है, एंटीबायोटिक्स होती हैं वो एंटीबैक्टीरियल होती हैं, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब वैसे आ गई है एंटीवायरल डिजीजेस, ठीक है, द एंटीबायोटिक्स आर गिवन ड्यूरिंग द वायरस इन्फेक्शन डू नॉट एक्ट अगेंस्ट द वायरस बट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम अदर बैक्टीरियल फंक्शंस, लाइक एंटीबायोटिक्स जो हैं उनका वायरस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, जो भी हम ले लेते हैं मेडिसिन, ठीक है, उनका वायरस के ऊपर कोई नहीं है इफेक्ट, बट जो वायरस इन्फेक्शन है अगेंस्ट वो चलता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। सो वायरल इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाते हैं कंट्रोल, ठीक है। सम ऑफ द डिजीजेस कॉज्ड बाय द वायरसेस आर इन्फ्लुएंजा, लाइक ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं, बहुत सारे वायरसेस, आपको वायरसेस के बारे में पढ़ना है, उसके जो एग्जांपल्स हैं लाइक स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्प्स, ठीक है, हेपेटाइटिस, हर्पेस, एड्स एंड रेबीज, ठीक है, ये सब। एड्स भी रेट्रोवायरसेस है और रेबीज भी वायरस से होती है, इनकी मेडिसिन आ चुकी है, पर एड्स की नहीं अभी भी हो रही है, इट्स लाइक जस्ट लाइक अ कोविड बिकॉज वो रेट्रोवायरसेस है,
हर एक हॉस्ट में जाके अपनी नेचर चेंज करता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड अबाउट दिस। जो बंदा बार बार, आई मीन जो वायरस बार बार नेचर चेंज करता है, तो उसके लिए थोड़ी मेडिसिन बनानी इट बिकम्स डिफिकल्ट। अगर एक बार आप पढ़ लें, उसका सारा सिनेरियो समझ आ जाए, बट जब बार बार ट्रांसफॉर्म होता है, उसके लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक एनी काइंड ऑफ अ मेडिसिन जो वर्केबल हो उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट वन इज अ रिकेट्स। बस आपको इतना ही पढ़ना है, वायरस किसके बारे में समझना है, और कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो मैंने नाम दिया कि वो कैसे हैं और नेचर है, सबसे स्मॉल होते हैं। नाउ द इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स, ठीक है, एजेंट्स के बारे में। अब रिकेट्सिया इज आल्सो वन ऑफ द एजेंट्स लाइक वायरसेस, दे आर आल्सो पैरासाइट्स। पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे के ऊपर रिसाइड करते हैं, लाइक हॉस्ट की तरह। तो जो वायरस है दैट्स आल्सो अ पैरासाइट, रिकेट्सिया दे आर आल्सो द पैरासाइट्स, ठीक है। दे ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स, बट लाइक अनलाइक वायरसेस दे आल्सो, आई मीन, यूज द host machinery, but little bit unlike the viruses, they are susceptible to antibiotics, okay. So also unlike the viruses, they are visible under the conventional microscope, like special staining। अगर आप इसको स्टेन करके देख लो तो कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आ जाते हैं, जबकि वायरसेस में ये डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज्यादा, वो विजिबल भी नहीं है, इतने माइन्यूट होते हैं, उसके लिए बहुत स्पेसिफिक टेक्निक चाहिए टू सी दैट वायरस। they are transmitted to the humans by the bites of the infected ticks, lice, fleas से, मच्छरों से और इन चीजों से रिकेट्सिया वायरस है जो उसकी वो बाइट से एजेंट्स एंटर कर जाते हैं ह्यूमन बीइंग से और इन एनी अदर लिविंग हॉस्ट, एनी एनिमल और एनी बर्ड। Diseases caused by the rickettsia like fever, trench fever, rickettsia pox, Rocky Mountain, ये सारी fevers से है, होती है, ठीक है। Now coming to the bacteria, ठीक है। और bacteria can multiply outside the living cells। अब ये थोड़ा सा वायरस से और रिकेट्सिया से थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज उनको तो हॉस्ट सेल चाहिए चाहिए मल्टीप्लाई होने के, बट बैक्टीरिया क्या है, वो आउटसाइड भी मल्टीप्लाई कर जाते हैं। सो अगर वो बाहर भी हैं तो उनका अमाउंट बाहर भी, नंबर बढ़ता रहता है, अमाउंट भी, नंबर भी बढ़ता रहता है। तो जब बहुत ज्यादा नंबर भी हो जाता है और फिर वो बहुत इजीली इन्फेक्ट भी करते हैं, मतलब बाहर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दे डोंट नीड मच मोर ऑफ द हॉस्ट। फिर हॉस्ट के अंदर आएंगे तो फिर तो और भी ज्यादा, ठीक है। दे कैन देयरफॉर बी कल्टीवेटेड ऑन द आर्टिफिशियल मीडिया। उनको स्टडी अगर करना है, बैक्टीरिया की नेचर अगर आपको स्टडी करनी है, देन यू हैव टू हैव सम कल्चरल मीडिया, उसके ऊपर आप उसको ग्रो कर लोगे, उसका नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन यू कैन स्टडी की कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और क्या इनकी नेचर है, क्या इनको चाहिए। सो बैक्टीरियल डिजीजेज आर लिटिल बिट लेस डेंजरस देन द वायरसेस। डेंजरस इतनी कम नहीं है, बट ये है कि फिर भी उनको स्टडी करना हो, और हॉस्ट से बाहर भी वो मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी कैन स्टडी द नेचर ऑफ द देयर नेचर। बिकॉज जब हमें वायरस डिजीज के बारे में पढ़ना होता है, वायरल कॉजिंग डिजीजेस के बारे में पढ़ना होता है, एनी वायरस की बात कर रही हूँ, देन वी नीड टू हैव अ हॉस्ट। आपको इन्फेक्शन कॉज करवानी होती है, फिर देन यू हैव टू, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट कि किस में जाके किस में, फिर बिकॉज ये हर एनिमल में, हर में जाके ना थोड़ा नेचर चेंज कर देते हैं। और अगर किसी का जेनेटिक जो मटेरियल, और वायरस इसका जेनेटिक मटेरियल के ऊपर भी डिपेंडेंट है, जैसे अब एड्स का है, एड्स इज ऑल्सो वायरस कॉजिंग डिजीज, बट उसका जो डीएनए और जेनेटिक मटेरियल है वो रेट्रोवायरस है, आरएनए है, ठीक है। अब जब ये कोविड है, इसका भी है इसी तरह से, इनको इनको फिर स्टडी करना और इनका इलाज निकालना ना, वो एक चैलेंज बन जाता है। अब आपके सामने बहुत बड़ा एग्जांपल है ही है कोविड का, ठीक है। तो बैक्टीरियल कॉजेज डिजीजेस एज देयरफॉर इजी टू आइडेंटिफाई एंड क्योर, दे लाइक डिप्थीरिया, whooping cough, tuberculosis, cholera, acute diarrheal diseases like dysentery, typhus, typhoid, tetanus, trachoma and other infections of the eye, ear and throat, leprosy वगैरह, ये सब जो है ये बैक्टीरियल कॉजिंग डिजीजेस हैं, बट दे आर क्योरेबल। ये इनके भी कभी डिजीजेस के जब पता चला था, देन इनकी क्योर आ चुकी है, वी कैन गेट इम्यून फॉर दैट डिजीजेस, ठीक है। अब नाउ फंजाई, तो दीज फॉल इन बिटवीन द फ्री लिविंग एंड द हॉस्ट डिपेंडेंट पैरासाइट्स। ये भी क्या है, फंजाई भी क्या है, फ्री लिविंग भी है और हॉस्ट में भी आके मल्टीप्लाई कर जाती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दे कैन लिव आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टोटली डिपेंडेंट अपॉन इट। सो इनका क्या है कि ये बाहर भी मल्टीप्लाई करती हैं फंजाई, और लिविंग भी हॉस्ट जब हो जाती हैं तो अंदर आके मल्टीप्लाई करती हैं। बाहर अगर, जैसे क्या है, सम, अब फंजाई में ना क्या है कि सम बेनिफिशियल फंजाई भी हैं और सम डिजीज कॉजिंग भी हैं। अब लाइक अगर आप एग्जांपल लें, मशरूम है, वो भी एक फंगस है, ठीक है। वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करती है लिविंग हॉस्ट से,
ठीक है, बाहर ही ग्रो करती है, होस्ट पे तो नहीं है। वाइल दे आर द, ऑब्वियसली ग्रो करने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, उसके लिए लिविंग, उसको भी ग्रो करना वो तो चाहिए, बट एक ही होस्ट को डिजीज कॉज करके वो ऐसा नहीं है। बट दीज आर काइंड ऑफ दी पॉजिटिव फंजाइज, ठीक है। बट क्या है कि ग्रो ऑन द वाइल अदर काइंड ऑफ फंजाई, जब वो स्किन पे ग्रो करती है, स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है थोड़ी बहुत अगर करती है तो फंगल इन्फेक्शन है, एवरीबडी यू नो एवरीथिंग अबाउट, एंड देन दे ग्रो इन बिटवीन द फिंगर्स टोज, जब थोड़ी सी मॉइस्चर भी रह जाता है और बंद रहता है, विंटर्स में थोड़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, विद द लेदर शूज भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ऐसे तो वो तब वो ग्रो करता है, बट सम फंजाई इवन ग्रो इनसाइड द ओरल कैविटी एंड कॉज इन्फेक्शन, जब बहुत अंदर जाके भी ग्रो कर जाते हैं, सम काइंड ऑफ या डिफरेंट काइंड ऑफ, आपको इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आप थोड़ी सोचिए कि फंजाई पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ठीक है। मशरूम इज ऑल्सो काइंड ऑफ द फंजाई, जो हम एडिबल भी है, बट ये है कि बहुत सारी ऐसी हैं जो इनसाइड भी ग्रो करती हैं, बाहर भी ग्रो करती हैं, और स्किन इन्फेक्शन भी हो जाती है बाहर, हाथों पैरों के फिंगर्स के जो इनसाइड स्पेसेस होते हैं। एंड समटाइम्स क्या है कि गले के इन्फेक्शन, अंडर थ्रोट इन्फेक्शन वहां भी जाके हो ही जाता है। सो फजाई कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ डिस्ट्रॉयड बाय द कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, इनके लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं। And others are the protozoas. These are single-celled organisms and can be identified under the microscope and destroyed with the suitable chemotherapy. इसका एग्जाम्पल है जैसे मलेरिया है, अमीबिक डायसेंट्री हो जाती है, ठीक है। प्रोटोजोआ से हमेशा ज्यादातर डाइजेशन की और डायसेंट्री डिजीज हो जाती हैं, जैसे मोशन टेम्परेचर, लूज मोशंस लग जाती हैं, हमेशा हमें डाइजेस्टिव डिजीजेस ज्यादा होती हैं, इससे डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से रिलेटेड डिजीजेस हो जाती हैं। तो मेटाजोअल पैरासाइट्स कौन से होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोअल पैरासाइट्स लाइक अदर द मल्टीसेलुलर एंड द कैपेबल ऑफ अडॉप्टिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब ये मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर मतलब वायरस जो है सिंगल सिंगल सेल के बने होते हैं। मेटाजोल पैरासाइट्स क्या है कि वो थोड़े से ज्यादा सेल्स के बने होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, दो चार, बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं होता, बट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड वेरिड वाइडली फॉर्म्ड है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स हैं, लाइक दे गेट इनटू आवर बॉडी, एंड हुक वर्म है, टेप वर्म है, राउंड वर्म है, गिनी वर्म है, ये सब। फिलेरिया इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द मेटाजोल पैरासाइट्स। अब नाउ वी आर कमिंग टू द एक्टोपैरासाइट्स। आप ये नाम याद रखिए बस इतने, बैक्टीरिया, वायरसेस, fungi, rickettsia, protozoal, metazoal parasites, and the ectoparasites. These are the parasites that live in the exterior of the animals and humans. Some of them affect only the outer surface of the skin of the host, like other lice and the scabies mites. Scabies disease होती है ना, बहुत ही itching वाली disease हो जाती है स्किन के बाहर बाहर, ज्यादातर इनसे वही ये डिजीजेस होती हैं एक्टोपैरासाइट से, सुपरफिशियल स्किन डिजीजेस आउटर साइड ऑफ द स्किन, ठीक है। अब नाउ वी आर कमिंग टू द सोर्सेज एंड द रिजर्वायर ऑफ द इन्फेक्शन। सोर्सेज कौन से होते हैं और रिजर्वायर कौन से होते हैं, मतलब कहाँ से ये पैदा हो जाते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, और जो भी हमने टाइप्स ऑफ दी पॉजिटिव एजेंट्स, कंटेमिनेटिंग एजेंट्स के पढ़े हैं, और रिजर्वायर कहाँ है, ये ऑलरेडी कहाँ रह रहे होते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो सोर्स है किसी भी इन्फेक्शन पेशेंट्स, पैथोजन का, पैथोजन ही कहते हैं पॉजिटिव एजेंट्स को, पैथोजन वो होता है जो डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो इसका है कि दिस इज समथिंग कैन बी पर्सनल, पर्सन से, किसी एनिमल से, ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस से आता है, एक बार से दूसरी बार, एक से दूसरे पे जाके। तो जो रिजर्वायर है इज समथिंग इन विच द पैथोजन लिव्स एंड मल्टीप्लाई। जो रिजर्वायर होता है ना, वो एक ऐसी जगह होती है जिसमें वो रह के हॉस्ट में, हॉस्ट हो या आउटसाइड हो, जहाँ पे वो रहता है और मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। और अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट होता है। अब जब वायरसेस हैं वो बाहर तो बिल्कुल सर्वाइवल नहीं होता उनका, बैक्टीरिया कैन ग्रो आउटसाइड, फंजाई कैन ग्रो आउटसाइड, पैरासाइट्स, कोई किसी भी तरह के पैरासाइट से वो दे कैन ग्रो, बट वायरस कैन नॉट ग्रो आउटसाइड, वो दैट 100% नीड्स अ हॉस्ट, ह्यूमन, एनिमल हॉस्ट, लिविंग हॉस्ट, ठीक है, जिसमें वो सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है। फिर ये जो रिजर्वायर होता है दैट कैन बी अ पर्सन, कोई भी हो सकता है, जैसे वायरस के लिए तो पर्सन, एनिमल, प्लांट्स और एनी लिविंग सिस्टम है, तो बाकियों के लिए भी यही है। जब ये बाहर भी ग्रो करते हैं, लेकिन जब रिजर्वायर पे आती है बात, तो फिर ये सारे ये वाले पर्सन, एनिमल, प्लांट, सॉइल या सब्सटेंसेस, और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, मल्टीपल भी हो सकता है। जो जो रिजर्वायर होता है एक नेचुरल हैबिटेट होता है, रिजर्वायर का मतलब यही होता है कि जो नेचुरल हैबिटेट है जिसमें वो पैथोजन अच्छे से सरवाइव कर सके, ठीक है। तो अगर उस रिजर्वायर को भी आप डिप्लीट कर दो ना, खत्म कर दो, देन ऑल्सो यू कैन
बच सकते हो आप भी। जैसे अब मच्छरों से मलेरिया की बात होती है, मॉस्किटो से, वो भी तो एक मलेरिया कॉज करता है। मैं वो बेस्ट वायरसेस है उसमें तो नहीं है, बट मलेरिया का तो कंटामिनेटिंग, मलेरिया का तो पॉजिटिव एजेंट है ना। तो उसका रिजर्वायर क्या होता है? वो गंदे पानी भरा हुआ या छप्पड़ जो होते हैं या गंदा पानी और जो भी चीजें होती हैं, जब वह उसका आप रिजर्वायर खत्म कर दोगे, मच्छर खत्म हो गए तो मलेरिया खत्म हो गया। ठीक है जी। एंड रिजर्वायर हाउएवर इज नॉट ऑलवेज अ सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन। वो सोर्स नहीं होता इन्फेक्शन का जो रिजर्वायर होता है, उसमें तो वो पलता है जो आपका पॉजिटिव एजेंट है। जब तक आप उससे कंटेमिनेशन के या उसके प्रिजर्वर के टच में नहीं आते हो, तब तक नहीं आप इन्फेक्शन कॉज नहीं होता आपको या फिर एनी लिविंग सिस्टम को। Sources is generally supposed to be the immediate source of the infection and may or may not be the part of the reservoir. So hookworm infection जो है वो रिजर्वायर उसका क्या है? ऑलरेडी मैन ही है। बट द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से आता है उसका? कहाँ से आएगा? सॉइल कंटेमिनेशन। अगर जिसमें इन्फेक्शन के लार्वे आते हैं, मतलब कि सॉइल में, मिट्टी में ना उसके लार्वा, और लार्वा होता है जो पूरा उससे बनता है, और उसमें मतलब लार्वा होता है कि जो पूरा ग्रोन बैक्टीरिया या पॉजिटिव एजेंट है ना, जब उसकी अडल्ट फॉर्म होती है, उससे पहले जब वो एक प्यूपा, लार्वा, ये वाली फॉर्म्स होती है ना, उसकी लाइफ लाइफ सर्कल की एक फॉर्म्स होती है ना, वो इनएक्टिव होती हैं। ठीक है। वो उसमें सरवाइव कर रहा होता है सॉइल में। जब वो सॉइल गंदा कहीं भी मैन के अंदर चला जाता है, सपोज कहीं से भी खाने में टच होके या किसी तरह से, या फूड बाहर आप खाते हो कोई गंदे हाथों से या वट एवर, कैसे भी इनसाइड चला जाता है, एंड देन तो वो मैन के अंदर चला जाता है, देन मैन बिकम्स अ रिजर्वायर ऑफ दैट हुकवर्म। फिर वहां से डिजीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और इसका क्या है कि इसका जो सोर्स है ना सॉइल में, कहाँ से आता है? जैसे इसका सोर्स है यूरिन ऑफ द पेशेंट्स, या कंटेमिनेटेड फूड है, या फीसिस मटेरियल है, या वाटर या मिल्क में से कहीं से भी आ जाएगा। ठीक है। सो दीज थ्री काइंड ऑफ, अब क्या है कि काइंड ऑफ रिजर्वायर जो है, जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, और एनी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है। तो उनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि जैसे ह्यूमन रिजर्वायर है। ह्यूमन रिजर्वायर में क्या होता है कि जो वायरल डिजीजेस हैं, या इन्फ्लुएंजा हो गया, मीजल्स, चिकन पॉक्स, मम्प्स, वॉर्म्स, और एड्स, पोलियो, ये सारी वायरल है। और लेटेस्ट आप इसमें ऐड कर लीजिए कोविड। ठीक है। इसमें क्या है कि ये कैसे फैलती है? सबसे बड़ी बात मैं आपको जो मैंने बताया, पर्सन हु हैव अ डिजीज, जिसके पास, जिसको डिजीज ऑलरेडी हो चुकी है, अगर वो कोविड के चक्कर में ही आप दे लो, इफ यू कैन, इफ द कोविड पर्सन, लाइक अब आप सोचिए, अगर द पर्सन हु डजंट हैव एनी डिजीज, ठीक है, वो अगर मास्क पहन, उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। रादर देन किसका होगा इफेक्ट? जिसको डिजीज हुई है ऑलरेडी। ठीक है। अगर वो मास्क पहने और वो अपने हाथ साफ रखे, वो अपने आप को क्लीन रखे, तो बाकियों को इतना नहीं होगी, क्योंकि वो उसके अंदर ही है, उसको हुआ है तो वो अंदर ही रखेगा, वो दूसरों को कॉज नहीं कर सकता। ठीक है। बट क्या है कि इट एंटायरली डिपेंड्स कि सब हम ले रहे हैं सारी तरह की प्रिकॉशंस, अब देखते हैं कब तक होता है। ठीक है। तो इस तरह से पर्सन टू पर्सन डिजीज फैलती है, और एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिसको ओवरकम कर जाता है जब वायरल लोड, तो वो डिजीज के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब क्लिनिकल सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाता है। एंड आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ ऑलरेडी द इन्फ्लुएंजा, एंड बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है। इन्फ्लुएंजा एंड ये सारी डिजीजेज हैं, जो भी है, सारी तरह की वायरल डिजीज एक ही तरह से होती हैं। नंबर दूसरा है कि पर्सन हु हैव द इन्फेक्शन एजेंट्स इन देयर सिस्टम बट डू नॉट शो एनी एविडेंस डिजीज। अब कोविड के चक्कर में देख लो, अब आपको बहुत सारी चीजें हैं जो एसिम्टोमेटिक है, बट वो वायरस तो कॉज कर रहा है ना। ठीक है। उसको पता नहीं है। ठीक है। एसिम्टोमेटिक है, उनसे भी हमें बच के रहना होता है, बिकॉज वायरस है, उस पर्सन की इम्यूनिटी ठीक है, या उसका भी लेटेंट पीरियड चल रहा है जिसमें अभी वो सिम्टम्स नहीं शो करेगा, या इंक्यूबेशन पीरियड, वट एवर यू कैन से टू दैट। तो व्हाट विल हैपन कि उससे जो डिजीज है वो दूसरे को चली जाएगी, और दूसरे में भी एक पीरियड शो होना, एक लेटेंट पीरियड शो होना शुरू हो जाएगा, इंक्यूबेशन होनी शुरू हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन होनी शुरू हो जाएगी, तो इसमें हो सकता है सिम्टम्स आ जाएं। इट एंटायरली डिपेंड्स कि किसी की इम्यूनिटी कितनी अच्छी है और कैसी है। ठीक है। अब एनिमल रिजर्वायर क्या होता है कि एनिमल्स में भी जाके इन्फेक्शन सर्वाइव करता है, मे बी वो उनको इन्फेक्शन नहीं करता। अब जैसे क्या था, कोविड का जो वायरस था वो बैट में रिसाइड करता, उसका जनरल रिजर्वायर था, पर वो बैट को इन्फेक्शन करके उसके उसमें सिम्टम्स तो नहीं दिखा रहा था ना,
सिम्टम्स अब जब ह्यूमंस में आ जाते हैं तो वहां पे सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। सो इस तरह से होता है कि कई बार क्या है कि एनिमल रिजर्वायर होता है, ठीक है, वहां पे उसको नहीं होता, और बाकी जब वहां से इन्फेक्शन कहीं और जाता है, ठीक है, तो फिर वो सिम्टम्स शो करना, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो होनी शुरू हो जाती हैं। देन नॉन लिविंग रिजर्वायर, समटाइम्स क्या है कि एनिमल रिजर्वायर में भी ये सर्वाइव करते हैं, नॉन लिविंग में भी रिजर्वायर। आप सिर्फ एक कोविड का एग्जांपल लेके चलिए कि इसका नेचुरल रिजर्वायर जो बैट्स दिखाए थे वो उसका एक एनिमल रिजर्वायर था जिसमें वो रिजाइड कर रहा था, पर बैट्स थोड़े ही ना मर रहे थे, ठीक है, बैट्स को भी अगर डिजीज हो रही है या जो भी है उसमें वो रिसाइड करता था, उससे फिर आगे फैल रही थी, ठीक है। पर क्या हुआ कि उससे वो एक एनिमल रिजर्वायर था, तो उससे जब ह्यूमंस में आई तो वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली, बहुत ही उसके जो ड्रास्टिकली हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, ठीक है। तो अब जब नॉन लिविंग रिजर्वायर की बात अगर आप कर लो, अब मतलब कि अब टच करके वहां भी तो सर्वाइव करता है ना फॉर फ्यू आवर्स, ये हमें समझ आ गया। नॉन लिविंग टेबल टच है, कपड़ों पे है या कहीं भी, वो टच करके फ्यू आवर्स तक सर्वाइव करता है, चलो उस उतनी देर उसका जो नॉन लिविंग सिस्टम के ऊपर जो रिजर्वायर है, जैसे हम कोविड के एग्जाम्पल में ले रहे हैं। अब नाउ विल डिस्कस द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन। लाइक हमने एजेंट का तो देख ही लिया, उसका रिजर्वायर डिस्कस कर लिया, उसके कितनी तरह के हमारे पास पॉजिटिव एजेंट्स हैं वो हमने पढ़ लिया, किस किस तरह की डिजीज है। लेकिन अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन कितनी तरह के हैं, लाइक एक तो हो गया डायरेक्ट ट्रांसमिशन कि सीधा ही आप कंटेक्ट में आ गए, ठीक है। ऐसी सी डिजीजेस कौन सी हैं जो सीधा कंटेक्ट में आने से होती हैं, लाइक एड्स है, लेप्रेसी है, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन, आईज इन्फेक्शन है, आप डायरेक्टली टच में आए, टच हुआ एंड देन अपने इन्फेक्शन को कैच कर लिया। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कौन से होते हैं, ये भी कोविड में है, कोविड का आई है, जैसे छींक आई है, छींक में उसके ड्रॉपलेट्स जाते हैं, जैसे थोड़ा सा भी लिक्विड या मॉइस्चर चला जाता है तो उससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, उसके टच में भी आप आएंगे, दैट ड्रॉपलेट्स दे आल्सो कैरी सम वायरसेस, वायरस, कोविड का वायरस जो भी है, तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड कंटैक्ट विद सॉइल, अगर जिसपे आप, जैसे अब हम कंटैक्ट विद सॉइल की बात कर रहे हैं या फिर टेबल की या वैसे भी कोई भी के टच की बात करते हैं, उसके ऊपर भी अगर आ जाएगा तो अगर वो काफी देर तक रिसाइड करता है, अगर आर्स उसके खत्म हो गए हैं कोविड के, तो अगर वो खत्म हो गया तो खत्म हो गया, अगर उसके बीच बीच में आपने उसको टच कर लिया देन तो ऑल्सो भी कंटेमिनेशन का एक वे बन जाएगा, ठीक है। एंड इनोकुलेशन इनटू द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन, अब सम टाइम क्या होता है कि हमारी जो स्किन है उसके थ्रू अगर कट था उसके थ्रू एंटर कर गया, या म्यूकस मेम्ब्रेन है माउथ की या कोई और भी स्किन के कट के थ्रू एंटर कर गया, ठीक है। दिस इज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कोविड, आई जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ द कोविड एज अ वायरल और बैक्टीरियल डिजीज का एग्जांपल देने में, ठीक है। बट ये और डिजीजेस के साथ भी है, लाइक किसी भी तरह की डिजीज हो सकती है ना, ये कॉमनली जस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसमें सारी तरह की डिजीज है, लाइक पैरासाइट्स वाली भी, बैक्टीरियल भी, रिकेट्सियाई भी और वायरल भी, इन सब में से कोई भी मोड हो सकता है इन सारी डिजीजेस को, पॉजिटिव एजेंट्स की डिजीजेस को कॉज करने के लिए, ठीक है। अब फिर ये तो था डायरेक्ट वाले में हमारे पास आ गए थे ये कि डायरेक्ट कंटामिनेशन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कंटैक्ट विद सॉइल है, इनोकुलेशन होगी थ्रू स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, एंड देन द ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, वो तो क्या होती है, वो तो हेरिडिटरी डिजीज होती है कि मदर से जब बच्चों को चली जाती हैं डिजीजेस, ठीक है। हर्पीस वायरस, हेपेटाइटिस, एड्स, ये सारी वायरल फीवर वायरस वाली जो फीवर डिजीजेज हैं या बैक्टीरिया वाली डिजीज अगर मदर को होती हैं, अगर वो उस वक्त कंसीव करती है तो वो बच्चों को भी आगे हो जाती हैं, ठीक है। समटाइम्स मतलब इसके बड़े सारे रीजंस हैं, होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या आ गया फिर, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या है, अब जैसे कोविड में भी है कि एक बंदे ने कैरी की है, उसको पता भी नहीं है, दूसरे के पास पहुंच गया, ये खुद तो एसिम्प्टोमेटिक था, थर्ड वन को हो गया, उसमें सिम्प्टोमेटिक भी बन गया। इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी, ठीक है। द डिजीज एजेंट फर्स्ट गेट आउट थ्रू सम, देन समथिंग कैरीज आउट इन द न्यू होस्ट, मतलब कुछ लिया और खुद यूज नहीं किया या खुद ऐसे ही रह गया और दूसरे को चला गया, तो इनडायरेक्ट, ठीक है। अब वेहिकल बोन भी होती हैं, जैसे इन्फेक्शियस एजेंट है समथिंग जो हम कैरी करते हैं, लाइक वाटर, आइस, फूड आइटम्स, पर्टिकुलरली वेजिटेबल्स, ड्रिंक्स। अब ये भी कोविड के बारे में आपको मैं बता रही हूँ, जैसे कि कोई वेजिटेबल हॉकर है आपके पास, लेके आया, उसने बोरी को हाथ लगाया और बोरी रख दी, बीच में कंटामिनेटेड थी सब्जियां जो भी, उसने खुद तो टच की नहीं, ठीक है, बट वो बाद में चाहे कर रहा, आपने वो ले ली तो आप इनडायरेक्ट हो गया, जो बीच वाला लेके आया दैट इज नॉट, वो व्हीकल बोन होती है। व्हीकल बोन हो गई लाइक किसी भी चीज के थ्रू या मिल्क प्रोडक्ट्स के थ्रू, ब्लड सीरम के थ्रू, किसी भी ऑर्गन के थ्रू,
किसी भी तरह से ऐसी डिजीजेस जब हो जाती हैं जिनका इनडायरेक्ट हो या वेहिकल बोर्न हो किसी चीज के ऊपर लग के। वेक्टर बोर्न कौन सी होती हैं कि कोई ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट जो कैरी करता है और ससेप्टेबल है पर्सन, और ट्रांसमिशन जो है मैकेनिकल और बायोलॉजिकल कोई भी हो सकता है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन में क्या है कि जो वेक्टर है वो कैरियर है पैथोजन का, जैसे एसिम्प्टोमेटिक, मैं कोविड की बात कर रही हूँ, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक पर्सन क्या है, वो कैरियर ही है, वेक्टर वेक्टर बोर्न हो गई है वो डिजीजेज इसी तरह से जाती हैं, ठीक है, वो इनडायरेक्टली एंटर करेगा। फिर एयरबोर्न का तो आपको पता ही है, जो एयरबोर्न होती हैं वो तो हवा में ही आ जाता है, वायरस या बैक्टीरिया। तो फिर तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आई मीन टू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ अ डिजीज, जो एयर में ही वायरस आ जाता है, बिकॉज आप बाहर भी जाते हो देन ऑल्सो। जो वायरस फीवर हर बार आता है वो एक एयरबोर्न सा ही बन जाता है, क्योंकि इतने लोगों को होती है, इतने लोग चीख रहे होते हैं, इतने लोग टच कर रहे होते हैं, इतना सब कुछ चल रहा होता है, तो वो एक हवा से में ही आ जाता है कि आप कहीं से भी आसपास से भी निकलते हो, किसी ना किसी को हुआ होता है तो वो आपको उसको कंटैक्ट में आते हो और आपको हो जाता है। और फॉर्माइट बोन होती हैं, water like inanimate articles like substances other than the water, the food that get infected and infectious discharges of the patient from the harbor these infectious agent and then transfer from one healthy person to called the ओमाइट। लाइक ये भी इनडायरेक्ट काइंड ऑफ ही है, ठीक है। जैसे कि सॉइल क्लोथ से, टॉवल से, जो यूज्ड आइटम्स होती हैं बीमार पर्सन से, उससे भी जब हो जाती हैं। अच्छा, अब जैसे क्या है कि फीसिस है, कोई भी बंदा गया, उसने टॉयलेट की जैसे खेतों में की, और उससे वाटर, फिंगर्स, फ्लाई या सॉइल उसके ऊपर टच किया, फिर वो फूड के ऊपर जाके बैठेगा, या उससे फीसिस से कोई वाटर कंटेमिनेट हो गया तब वो पर्सन तक पहुंचे, या फीसिस से जो सॉइल कंटेमिनेट हुआ था वो उससे एक ह्यूमन तक पहुंचे, और जो फीसिस हैं उसके फिंगर्स लगी हैं, फ्लाइज उसको टच करती हैं, फिर वो फूड पे बैठे, ठीक है, फिर वो फूड हम खा लेते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि वो पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के आई होंगी, फिर वो क्लीन नहीं होता फूड, उससे भी हॉस्ट में चली जाती हैं चीजें। आई मीन इनडायरेक्ट सारी ये होती हैं, ठीक है। और अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये सारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन था, और अगर हम क्या करें, या फिजिस से कोई भी डिजीज हमने इतने सारे दिखाए हैं, अगर उसके पास हम सैनिटाइजेशन का एक बैरियर लगा दे, ताकि जो वाटर है वो भी क्लीन है, जो फिंगर्स है आपकी वो भी क्लीन है, जो फ्लाइज आई नहीं रही है क्योंकि एनवायरनमेंट क्लीन है, जो सॉइल है वो उसको भी हमने टच नहीं की किया, और फूड जो है वो भी सारा क्लीन था क्योंकि हमने फ्लाइज एंड ऑल सब अवॉइड किया और क्लीन करके सब कुछ बनाया, और प्रॉपरली कुक्ड था, तो सॉरी, तो प्रॉपरली कुक्ड था, तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली इन केस ऑफ द कोविड। एंड देन मोड ऑफ द एंट्री, व्हाट्स अ मोड ऑफ द एंट्री इनटू दिस ससेप्टेबल होस्ट, ठीक है। कुछ ऐसे से मोड्स हैं, रेस्पिरेट कहाँ से करेगा, एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, सीधा आप सांस लेते हो, नाक है उससे है, ठीक है। ऐसी डिजीजेस कौन सी होती हैं जो एयरबोर्न होती हैं, जब आप एयर से सांस लेते हो सीधा का सीधा एयरबोर्न डिजीजेस को सांस लिया और यू गेट कंटेमिनेटेड विद दैट काइंड ऑफ द पैथोजन, वायरस और इन्फेक्शन आपको हो जाता है। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस कैसे होती हैं, जब आप कुछ खाओगे अंदर जाएगा, गैस्ट्रिक सिस्टम में जाएगा, इंटेस्टाइनल सिस्टम में जाएगा, उसमें जो कंटेमिनेटेड फूड आप खाओगे उससे होगी। एंड देन यूरोजेनाइट, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, लाइक यूटीआई इन्फेक्शंस होती हैं, एड्स होती हैं, वो आपको अनप्रोटेक्टिव सेक्स करने से होती हैं, या फिर आप सेम पॉट्स यूज करते हो, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं, ठीक है। एंड इस तरह की जो सिस्टम है इनसे आपको ये वाली डिजीजेस हो सकती हैं। और स्किन से जो होती हैं, लाइक लेप्रेसी है, स्केबीज है, जो स्किन की इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं वो क्या होती हैं, वो वेक्टर बोर्न भी हो सकती हैं। रेबीज आप डायरेक्ट कंटैक्ट में आते हो तब आपको होती हैं, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है से जो भी डिजीजेस आप कैच करते हो, लाइक आपने हाथ लगा लिया आईज को, म्यूकस मेम्ब्रेन है आईज के अंदर, नाक को अंदर हाथ लगा लिया तो नाक में, माउथ के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, कानों के अंदर भी जो ओपनिंग्स हैं, अगर आप वहां भी कहीं टच करते हो तो जो अंदर सॉफ्ट एक म्यूकस मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है, उसके उससे टच हो जाता है, देन ऑल्सो यू गेट इन्फेक्शंस। ये सारे मोड्स थे, मोड ऑफ और एंट्री इनटू दिस ससेप्टेबल होस्ट। एक तो हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जेनिटो यूरिटरी ट्रैक्ट और स्किन था, और फाइनली था म्यूकस मेम्ब्रेन। एंड देन प्रिवेंट कैसे करना है हमने फिर इन डिजीजेस को, प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस, लाइक अल्टीमेटली हमने, अब हमें सब समझ आ गई है, तो सैनिटाइजेशन सबसे बड़ी बात, और क्लीन एनवायरनमेंट, खाना क्लीन, फ्लाइज को, सॉइल को, ये सारी सारी चीजें हमने देखनी है, विच वी आर डिस्कसिंग अलोंग विद, लाइक एजेंट ऑफ द सोर्स इज द रिजर्वायर। सबसे पहले तो रिजर्वायर को खत्म करो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इन द डिस्ट्रॉइंग इट। रिजर्वायर को अगर आप डिस्ट्रॉय करते हो, सपोज आप रिजर्वायर, मच्छरों की मैंने बात की थी, गंदा पानी और ये खड़ा हुआ पानी अगर अवॉइड करते हो तो रिजर्वायर अवॉइड हो गया, और वैसे और भी जो चीजें हैं, लाइक
कोविड का तो अभी हमें समझ नहीं आया, पर कोविड का ये है कि लोगों से आ रहा है एक दूसरे से, तो वो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो अभी जो फॉर द टाइम बीइंग एक पर्सन जो कैरी कर रहा है वो उसका रिजर्वायर बना हुआ है। ठीक है, जो कैरी कर रहा है, जो इन्फेक्टेड है या एसिम्टोमेटिक है या सिम्टोमेटिक है, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप रिजर्वायर के आप पास नहीं जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते हैं, पास नहीं जा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई यू कैन सेव योर सेल्फ। ठीक है, नॉट अलाउंग द इंफॉर्मेशन टू डिजीज स्प्रेड द न्यू हॉस्ट। उससे क्या होएगा कि आप एक इन्फेक्शन को एक ही जगह रख रहे हो और अगली जनरेशन में या अगले नॉट जनरेशन लाइक अगर और बहुत सारी पॉपुलेशन में, ठीक है, आप स्प्रेड होने से उसको बचा रहे हो, क्योंकि आप उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, प्रोटेक्टिंग द होस्ट बाय मेकिंग हिम और हर स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट द इन्फेक्शन ऑफ द डिजीज। और आप ये कह रहे हो, आप एक हॉस्ट है, जब आपको पता चल गया है कि दिस पर्सन इज कैन बिकम अ हॉस्ट, ठीक है, या ऑलरेडी एक पर्सन हॉस्ट है, वो एग्जांपल ले लो, तो बाकियों को रेजिस्ट करो उससे मिलने में जब तक कि वो क्योर ना हो जाए। फॉर दैट टाइम बीइंग आप सोशल डिस्टेंसिंग और आप अपनी पूरी सैनिटाइजेशन और उसको आइसोलेट करके जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक आप अवॉइड करो, सो दैट यू कैन कंट्रोल द डिजीजेस। कंट्रोलिंग द एजेंट सोर्सेज एंड रिजर्वायर, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको आइसोलेट करना है पेशेंट्स को ताकि इन्फेक्शन ना हो दूसरे लोगों को। तो उसमें आपको क्या करना है कि एज पॉसिबल है पेशेंट को सेपरेट कर दो दूसरे लोगों से, उस रूम में रखो जहाँ पे वेंटिलेशन है उसको। ठीक है, अटेंडेंट अगर नेसेसरी हो तभी उसके पास जाए। ठीक है, और सोप और उसके जो पेशेंट के सोप टावल वगैरह सब चीजें हैं वो वही यूज करें, आप ना यूज करें। बाकी जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन हैं, जितने भी क्लोथ्स हैं उसको सेपरेटली वॉश किया जाए, जितने यूटेंसिल्स हैं उनको भी सेपरेटली वॉश किया जाए जो वो पेशेंट यूज करता है। ठीक है, और पेपर जो उसके जो भी वो यूज करता है उसको क्लीन करके, या फिर उसकी जो थ्रो करें, बिन में भी जिसमें भी थ्रो करते हैं वो भी एक सेपरेट हो, सेपरेट ही उसको फेंका जाए, सेपरेटली उसको दिया जाए। और जो क्वारंटाइन वर्ड अब आ गया है, दैट इज कॉल्ड, वो एक आइसोलेटरी एक प्रोसीजर है जो इन्फेक्शियस जब डिजीजेस होती हैं ऑलरेडी हम पर्सन को क्वारंटाइन करते ही थे। ठीक है, क्वारंटाइन का मतलब ही ये होता है कि उसको थोड़े दिन थोड़ा सा साइड पे रखो जब तक उसके सिम्टम्स खत्म ना हो जाएं और वो बिल्कुल हेल्दी होके वापस ना आए तब तक। ठीक है, तो चिकन पॉक्स जैसे कि अब था, अब कुछ कुछ चीजें हैं जैसे आइसोलेशन और क्वारंटाइन जो वर्ड आ गया है उसको अगर आपने करना है तो किस डिजीज में कितना करो। लाइक चिकन पॉक्स है, ठीक है, तो 6 डे 7 दिन तक तो आपको रख करके रखना ही पड़ता है जब तक उसके वो जो रैशेज हैं वो सारे ठीक नहीं हो जाते हैं। मीजल्स में भी आपको 3 डेज तक करके रखना पड़ता है उसको। ये सारी डिजीजेज है, ऐसे आपकी बुक में बहुत सारी डिजीजेज दी हुई है जिसमें नंबर ऑफ डेज या टाइम का ड्यूरेशन बताई हुई है कि इस डिजीज के लिए यू हैव टू क्वारंटाइन दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैज बिकम सिक विद दैट disease, who are suffering with that particular disease, he or she has to be quarantined for that particular period of time or that particular days of time। ठीक है, और जब तक उसके सिम्टम्स खत्म ना हो जाएं, दैट ही और शी शुड बी क्वारंटाइन फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। डिस्ट्रॉइंग बाय, अच्छा अब एक और मीनिंग है डिस्ट्रॉइंग बाय द हीट। लाइक जैसे कि वायरसेस सपोज या बॉडी में, अब जैसे कोविड का एग्जांपल है, वो आपको पता चल गया कि वो 4 डेज तक, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ द कोविड अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज causative agents of the virus and bacteria diseases, and this is very common and you people already know much more about these things, so मेरे लिए बहुत easy है आपको समझा पाना, टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। ठीक है, डिस्ट्रॉइंग बाय हीट, लाइक बॉइलिंग वाटर से आप जब आपको पता चलेगा कि कोविड से अगर आपके अंदर चला भी गया है, दैट सर्वाइव 3 to 4 days इन योर थ्रोट, तो बाय दैट टाइम आप उसे गार्गल्स कीजिए, जैसे नॉर्मल वायरल फीवर में करते हैं, आप अपने गले को ठीक रखिए, गार्गल्स कीजिए, गर्म पानी पीजिए, बार बार पीजिए, ताकि वो अगर थोड़ा सा बच जाता है और मल्टीप्लाई करता है हॉस्ट में, तब फिर से उसको आप क्लीन कर दो। ठीक है, तो क्लीन करके बाहर या स्पिट कर दो या स्टमक में चला जाएगा अगर गर्म पानी लेंगे, सो दैट यू कैन अवॉइड दैट पैथोजन या कोविड वायरस को आप थ्रोट से आपके लंग्स में जाने से अवॉइड करें, ताकि वो सीधा स्टमक में जाए, वहां जाके वो इनएक्टिव है, बिकॉज वहां पे आपका ऑलरेडी जो एनवायरमेंट है दैट इज एसिडिक, तो कोविड वहां भी सर्वाइव नहीं करता। सो आप इस तरह से कीजिए, क्योंकि अगर आप गले को नहीं ठीक करेंगे 3 4 डेज तक, आपको नहीं पता, थोड़ा थोड़ा सा खराश होनी शुरू हुई है एंड देन वो एंटर कर जाएगा लंग्स में, फिर आपके लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। स्टीम लीजिए तब तक आप, ठीक है, बॉयल करिए वाटर को, और वो ताकि वो क्लीन हो, ठीक हो जाए, ना आपको ज्यादा कर पाए अफेक्ट।
ठीक है। पास्चराइजेशन भी एक होता है कि एक सर्टेन बैक्टीरिया को, जब भी आप कोई चीज यूज कर रहे हैं, जैसे मिल्क है, आपको लगता है कि मिल्क से कुछ भी आपको आ सकता है, मिल्क इन्फेक्शन है, तो उसको काफी देर तक पास्चराइजेशन होता है, एक सर्टेन अमाउंट तक उसको स्टरलाइट करने का एक होता है। आई डोंट रिमेम्बर द एक्चुअली टाइम एंड द टेम्परेचर, बट वो पास्चराइजेशन आप चेक कर सकते हो कहीं भी, वो हमेशा मिल्क की जाती है, बिकॉज जो आपके पास पैकेट्स में दूध आता है वो पास्चराइज भी होता है, क्योंकि वो एक आप एक सर्टेन टेम्परेचर तक और काफी देर तक, कितनी देर तक और एक सर्टेन टेम्परेचर पे उसको पास्चराइज करते हैं, तो उसमें ग्रोथ नहीं होती है फिर, ठीक है। और उसके बाद है, अगर आप स्टीम लेते हैं, ठीक है, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप करते हैं तो बैक्टीरिया एंड स्पोर्स वहां किल हो जाते हैं। ड्राई हीट भी होती है, एयर फ्रायर्स हैं, आप ड्राई करते हो, बर्न करते हो, स्मोक करते हो, वहां भी हो जाते हैं। अब डिस्ट्रॉइंग बाय ड्राइंग, लाइक हीट से ड्राई करते हो, ठीक है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जस्ट कॉजेज दी मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस होता है जो दिमाग को बुखार चढ़ जाता है, सिर को बुखार चढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको भी अगर आप ड्राइंग से, जैसे लॉन्ग एंड डस्ट एंड सपोज को सर्वाइव ही नहीं करने देते हो, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉइंग विद द सनलाइट, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सनलाइट में बैठ के सन की लाइट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉइंग विद द केमिकल एंड डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक, जैसे अब कोविड के लिए हम सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं, अल्कोहलिक सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी चीजों से, और या फिर फिल्ट्रेशन से आप उसको रिमूव कर सकते हो। आपको मतलब बहुत सारे वेरियस मेथड्स हैं, आपको देखना है कि कौन सा वायरस है या क्या, किस चीज का डर लग रहा है, किस तरह से ये फैलेगा। अब जैसे कोविड के बारे में लोग अवेयर हैं, सो उसको हम उस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए जो पहले भी बहुत डेडली डिजीजेस बन गई थी, फिर उसके लिए इन्फेक्शन वैक्सीनेशन आ गई, कुछ ऐसी वैक्सीनेशन जैसे बीसीजी है, मीजल्स हैं, चिकन पॉक्स है, इन सब के एक वो आ गए हैं, वैक्सीनेशन आ गई हैं जो बचपन में सबको दी जाती हैं, ठीक है। और एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी की जाती है, जैसे एक्टिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज व्हाट is the one of the most powerful and the cost effective weapon of the modern medicine. Control of the infections like polio, tetanus, diphtheria and measles like based on this procedure. आपको पता है कि बचपन में जब होता भी नहीं है हम इसको पहले ही दे देते हैं, बट ये क्या होती है कि नॉन डिजीजिक फॉर्म्स होती हैं, अटेन्यूएटेड वैक्सीन होते हैं और किल्ड वैक्सीन होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि वैक्सीन डोज है जो एंटीबायोटिक परसिस्टेंस की, और अटेन्यूएटेड वैक्सीन देते हैं जैसे बहुत लो वैक्सीन देते हैं, ठीक है। किल्ड वैक्सीन में क्या करते हैं हम, क्योंकि वही एक जो वैक्सीन बनते हैं ना, इम्यूनाइजेशन, वो उसी उसी के ही बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं जो हम थोड़े अमाउंट में देते हैं, लेकिन उसका एक पार्ट जो डिजीज कॉजिंग होता है ना, उसको हम डेड करके देते हैं, उसको कहते हैं अटेन्यूएटेड वैक्सीन। और एक किल करके देते हैं, वही बैक्टीरिया बिल्कुल किल कर देते हैं, मतलब कि उसमें डिजीज कॉजिंग की कैपेसिटी रहती ही नहीं है। तो हम वो बचपन में उन्हीं के वैक्सीन बना के देते हैं, सो दैट हमारी बॉडी में उसके सेकेंडरी इम्यूनिटी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स बन जाते हैं, मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, क्योंकि अगर वो फ्यूचर में वो कहीं डिजीज आएगी तो हमारी बॉडी को पता होगा, उसमें फाइटिंग स्पिरिट और फाइटिंग कैपेसिटी होती है इन दैट पर्टिकुलरली सेकेंडरी मेमोरी सेल की फॉर्म में, ठीक है। तो इसी तरह से अब कोविड के लिए अभी नहीं, अभी हुआ है, और बहुत सारी ऐसी डिजीज है जिसके लिए नहीं है। और नेशनल एक इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे हर बच्चे की एक एज है, इन्फेंट्स होते हैं 6 वीक्स टू 9 मंथ्स में, पोलियो डीपीटी, पोलियो बीसीजी एंड डीपीटी का एक डोजेज देनी होती है, कितनी डोजेज देनी होती है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्राडर्मल है। फिर चिल्ड्रन जब 16 से 24 महीने का होता है तब फिर से उनकी बूस्टर डोजेज दी जाती हैं, एक इंट्रामस्कुलर दी जाती है, कभी ओरल दी जाती है। पोलियो की डोज आपको लोगों को पता है, एवरीबडी नोज दैट ओरल होती है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी टेटनस के, टेक्साइड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाए जाते हैं, सो दैट कोई इन्फेक्शन ना हो, ना मदर को हो, ना इन्फेंट को हो, व्हेन एवर इट विल बी बॉर्न। और कुछ ऐसे माइलस्टोन्स हमारी वैक्सीनेशन में पूरे वर्ल्ड में आए थे, जैसे सबसे पहले स्मॉल पॉक्स फैली थी, तब भी लोग मर रहे थे ऐसे ही, तो 1798 में इसका वैक्सीन आया था। फिर 1885 में रेबीज का वैक्सीन भी डिस्कवर हो गया था। 1982 में कॉलरा का, 1913 में टॉक्सिन। दिस इज ऑल गिवन इन योर बुक, टेबल दिया हुआ है टेबुलेटेड फॉर्म में, यू कैन गो थ्रू दैट। 1921 में बीसीजी, फिर 1923 में फिर ऐसे डिप्थीरिया करते करते 1976 में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी आ गया था, हेपेटाइटिस का। So immunization is one means of the protecting the greatest number of the people against a particular disease. मतलब हम पहले से उनको इम्यूनाइज कर देते हैं ताकि डिजीज जब भी हो तो वो कम से कम मरे ना, और उनमें सिम्टम्स भी नहीं आते हैं क्योंकि उनमें ऑलरेडी मेमोरी सेल्स बन चुकी होती हैं। इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ द पीपल ससेप्टेबल टू इट, वो नंबर मरने का और डिजीज कॉजिंग का जो नंबर है लोगों का वो बहुत कम हो जाता है, मतलब डिजीज इतनी ड्रास्टिकली नहीं फैलती है। Therefore, thereby augmenting what is called the herd effect in the immunity. This is only
This only means that in order to remove the disease from an area or a population, you do not have to immunize the every person over there. इसका मतलब ये है कि जब बच्चों को हम इम्यूनाइज करते रहते हैं तो एक पॉपुलेशन में जनरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो सबको इम्यूनाइज नहीं करना पड़ता, बट इट टेक्स फ्यू ईयर्स टू दैट। ठीक है, तो इसको कहते हैं हर्ड, HERD, हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनाइजेशन हैज टू बी प्लान अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, कंसिडरिंग द लार्ज नंबर ऑफ द वैक्सीन नेसेसरी टू कीप वन प्रोटेक्टेड फ्रॉम बेबीहुड एंड अडल्टहुड। मतलब इसकी सबकी एजेस बनी हुई है कि शुरू से छोटे होते से लेके एक थोड़े से अडल्टहुड से पहले, और उनके बूस्टर डोजेस भी फिर दिए जाते हैं टू चेक की वेदर द मेमोरी हैज ऑलरेडी डेवलप्ड। ठीक है, जैसे सबसे पहली डोज देंगे तो बच्चे, छोटे बच्चे को बहुत फीवर भी होता है, वो थोड़ा सा होने भी देना चाहिए, बिकॉज वो फीवर इसीलिए होता है टू डेवलप द इम्यूनिटी। ठीक है, बट आफ्टर फिर फ्यू ईयर्स ना, साल 6 महीने के बाद फिर से एक बूस्टर डोज देके देखते हैं। आपने देखा कि जब बूस्टर डोज देते हैं ना, बिकॉज ऑलरेडी फर्स्ट डोज देने पे जो फीवर हुआ था ना, उसमें आपकी इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका होता है। जब आप बूस्टर डोज देते हैं तब आपको फीवर नहीं होता है, बिकॉज वो मेमोरी सेल्स आ जाती हैं और मेमोरी सेल्स बन जाती हैं, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी चेक हो जाती है कि यू आर ऑलरेडी इम्यून टू दैट फॉर दैट डिजीज। अब आपको अगर दी जाएगी तो वो आपको डिजीज नहीं होगी। ठीक है, ऐसे डिप्टीरिया, पर्ट्यूसिस और ये सब जो भी होती हैं, इन सब की दी जाती हैं। अब इनकी एजेस भी हैं, दी हुई हैं। और अब आते हैं, ये होती है, ये सारे जो हम पढ़ रहे थे, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आपको एक्टिव बनाना इम्यून सिस्टम आपका डेवलप करके। ठीक है, अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? दिस कैन बी डन इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक इम्यून सब्सटेंसेस लाइक डायरेक्टली अगेंस्ट एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। पैसिव क्या होता है? जब आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि कोविड का जो इन्फेक्शन है, जिसको हो जाता है उसमें एंटीबॉडीज ऑलरेडी डेवलप हो जाती हैं, बल्कि अब उन लोगों का जो ठीक हो चुके हैं उन लोगों का प्लाज्मा लेके प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन थेरेपी दी जा रही है, बिकॉज उसमें से एंटीबॉडीज हैं। क्योंकि इनफैक्ट अभी इंजेक्शन तो बन नहीं रहा। ठीक है, तो उसमें से ही लेके, क्योंकि उसमें वो इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं, अब दूसरे को भी वो दी जाती है कि इस ये भी क्योर हो जाए। लेकिन क्या है, जिसको खुद डिजीज हुई है उसमें अपनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, लेकिन दूसरे की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड थी और वो नहीं ठीक हो रहा है, उतनी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पा रही है, सो दैट हम टाइमली उसको ठीक करेंगे, बट वो 100% ठीक नहीं होगा, वो 6-8 महीने के लिए ही होगा। जो बंदा खुद ठीक हो जाता है उसमें बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग सिस्टम, इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रॉन्ग होता है वो अच्छे से ठीक हो जाता है, तो उसमें अच्छी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब क्या है कि एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन एंड सेफ्टी। कहते हैं जो हॉस्ट है ना, उसकी एबिलिटी होती है डिफेंड करने की अपने आप को। डिफेंड करने की मतलब लाइक मी है, हम मैं हॉस्ट अगर बनूं किसी वायरस के लिए या बैक्टीरिया के लिए, देन मेरी अपनी इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जो वर्क कर ही रहा है मेरे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और तो उसको भी हम बहुत तरह से इम्यूनिटी बूस्टर्स लेके भी हम बूस्ट भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसी प्रोफाइलेक्सिक मेडिसिन होती हैं लाइक immunity boosters, vitamin C, E, we have already discussed in nutrition, DNHE1 में immunity boosters होते हैं जो, ठीक है, ताकि वो प्रोफाइलेक्टिक हम ले लेते हैं। विटामिन सी लो, जैसे आजकल बहुत कह रहे हैं, दैट्स नॉट मेडिसिन, दैट्स अ प्रोफाइलेक्टिक, ताकि आप अपने आप को एक इम्यूनिटी बूस्ट करके रखो और अपने आप को सेव कर लो। ठीक है, इसी तरह से पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है, दैट आल्सो डेवलप्स इन द न्यूबॉर्न इन्फेंट्स बिकॉज ऑफ द maternal antibodies getting transmitted into the placenta. पैसिव कैसे होती है? लाइक वो मदर से बच्चे में आती है, बट वो डायरेक्टली नहीं आती, थ्रू प्लेसेंटा ट्रांसफर हुई होती है। ऐसी इम्यूनिटी को हम पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। दे आर यूजुअली ऑफ शॉर्ट, वो थोड़ी देर के लिए होती है, क्योंकि उसके बाद बच्चों को हम इम्यूनाइज करके उनमें उनके अंदर खुद के सेकेंडरी सेल्स डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, अब नाउ रोल ऑफ द एनवायरनमेंट इन प्रोटेक्शन फॉर द इन्फेक्शन एंड डिजीजेस, ये मुझे लगता है बताने की जरूरत ही नहीं है। रोल ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने में, अब आजकल कोविड है, एवरीबडी नोस कि कैसे करना है, सैनिटाइज करना है, क्लीन करना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिजर्वायर को डिस्टर्ब करना है, अपने आप को एक बीच में एक सैनिटाइजर का एक बैरियर बना के रखना है। ठीक है, सैनिटाइजेशन, एयर क्लीन होनी चाहिए, रिजर्वायर्स नहीं होने चाहिए, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, अपने आप को उन चीजों से बचाना जिनसे ना हो, लाइक कहते हैं कि आइसक्रीम एंड ठंडी चीजें मत खाओ। ये सारी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि रोल क्या है फिर एनवायरनमेंट का। कोविड का एग्जांपल दे रही हूँ, बट सबके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें। सो विद दिस आई सम अप हियर only. I'll close it here so that it's already
क्लोज्ड, आपका खत्म हो गया है ये चैप्टर एजेंट्स वाला। इसका नेक्स्ट चैप्टर है, प्लीज काइंडली स्टडी दैट वाटर सप्लाई एंड वेस्ट डिस्पोजल, बिकॉज वाटर सप्लाई एंड वेस्ट डिस्पोजल ना एक कॉमन सा चैप्टर है जिसमें आप सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ सकते हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर, आर्टिफिशियल कौन से होते हैं, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर के बारे में, और कौन से पीने का पानी है, और आपको अर्थ पे पता है कितने % ऑफ वाटर है, और फिर वाटर साइकिल कैसे होता है, इवेपोरेशन होती है ऊपर से, फिर से वो बादलों से बारिश होकर फिर से वही वाटर नीचे आ जाता है, कौन सा क्लीन वाटर होता है, ठीक है। और जो जैसे पानी खत्म होता जा रहा है और डाउन होता जा रहा है, उसका सैलिनिटी फैक्टर जो होता है वो आप देख लीजिए इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आई रियली वांटेड टू मेक यू कि चीजें, मतलब ये दिस इज कंपैरेटिवली इजी, यू कैन डू इट योरसेल्फ वेरी इजीली, ठीक है। और अर्बन सप्लाई क्या होती है, फिर प्योरिफिकेशन वाटर की क्या है, फिल्ट्रेशन क्या होती है, ठीक है। फिर और प्योरिफिकेशन के कितने मेथड्स होते हैं, वाटर के साथ रिलेटेड है, वाटर की क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स उसमें, ठीक है ना। और डिस्पोजेबल जो डिस्पोजल है, जो अर्बन डिस्पोजल, वेस्ट है, फैक्ट्री वेस्ट है, डंपिंग है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हो। और उससे नेक्स्ट भी जो चैप्टर है दैट्स आल्सो वेरी कॉमन, हर कोई बंदा अपनी पर्सनल हाइजीन का, और कोविड के कारण तो अब बहुत ही अच्छे से आपको पता है कैसे पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, सैनिटाइजेशन करनी है, अपने आसपास में एनवायरनमेंट क्लीन करना है, तो पर्सनल क्लीनलीनेस का कैसे ख्याल रखना है, कैसे क्लीनलीनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट्स एंड नेल्स का ख्याल कैसे रखना है, क्लीनलीनेस ऑफ माउथ एंड टीथ का कैसे ख्याल रखना है, केयर ऑफ हेयर कैसे होनी चाहिए, केयर ऑफ आईज एंड ईयर्स, दिस इज ऑल कम्स इन अ पर्सनल क्लीनलीनेस, केयर ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल्स कैसे केयर करना है, ठीक है, रेस्ट कैसे करनी है, स्लीप, अपने माइंड को भी कैसे सेट करना है, एक्सरसाइज, फिटीग एंड पोस्चर का कैसे ख्याल रखना है, जिससे आपको सिटिंग पोस्चर्स में या स्टैंडिंग पोस्चर्स में या कंप्यूटर पे काम करके आपको दिक्कत आती है, और फटीग्ड कैसे रहते हो, थकावट किन किन चीज़ों से होती है, उन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। जो पोस्चर, हाँ पोस्चर का ऑलरेडी टोल्ड यू, और अपनी हैबिट्स का ख्याल रखना है, सबसे पहले आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स के बारे में, फिर स्मोकिंग हैबिट्स हैं, बाउल हैबिट्स हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। और फिर जो अगर आपको अब्यूसिव सब्सटेंस है, लाइक सम पीपल दे रियली वांटेड टू हैव सम गुड अमाउंट ऑफ अल्कोहल, ठीक है, उस अल्कोहल से कौन से बैड इफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर आते हैं, ड्रग अब्यूज है, कुछ लोग ड्रग्स हैं या मेडिसिन ज्यादा खाते हैं, फिजिकल एडिक्शन, साइकोलॉजिकल एडिक्शन का भी ख्याल रखना है, और फंक्शनल एडिक्शन, ठीक है। और कौन कौन सी ऐसी ऐसी नशे वाली जो चीजें हैं, वो थोड़ी सी एग्जाम्पल्स यहाँ दी हुई हैं, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा उनको। सो दीज आर क्वाइट कॉमन चैप्टर्स एक्चुअली। फिर क्लोथ्स एंड फुटवियर के बारे में, क्लोथिंग कैसी सी हो आपकी, ये सारा आता है पर्सनल हाइजीन में, ठीक है। क्लोथिंग एंड फुटवेयर की क्लीनलीनेस और किस तरह के पढ़ने चाहिए, डालने चाहिए, ठीक है। सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल सेक्स के बारे में भी यहाँ है। सो आप ये बहुत एक, क्योंकि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का भी ख्याल रखना है, ठीक है। सेफली होगा देन इट्स फाइन, अदरवाइज अनहाइजीनिक है तो दैट कैन आल्सो कॉज मेनी काइंड ऑफ डिजीजेस, यू पीपल आर ग्रोन अप। सो ये जो मैंने 2 चैप्टर्स का आपको बताया है, कि एक तो वाटर के बारे में चैप्टर है, जो वाटर साइकिल का सारा, और वाटर की क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड वाटर हाइजीन एंड वाटर सप्लाई एंड वेस्ट, ये सारा बहुत कॉमन है, इसको आप पढ़ लीजिए। और पर्सनल हाइजीन भी इट्स क्वाइट कॉमन, as you go on reading, so you'll understand all of these things. So I won't continue with the diseases, these 2 chapters, these are quite common, I'll go for the further next chapter by tomorrow, okay. With this I'll stop here, and kindly read that, and if you have any questions do ask me, okay. Okay, good. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Thank you. हेलो। हेलो मैम। हाँ जी सर, एक बात पूछनी थी, ये